सब जीव हल पार प्रेमेर बतासे ओहे प्रेमेर बतासे सब जीव हल पार प्रेमेर बतासे ओहे प्रेमेर बतासे पड़ियार हीन गचान पड़ियार हीन गचान अपनार
দোষে আপনার ও পরিহার হীনতা আপনার দোষে আপনার দোষে জানিতে জানিলে ভাই ভাব সিন্ধু পার তোরাকে জানিতে জানিলে Kali Juge Rajari Tanya Yamuna Chaitanya Vata O Dhanya Kali Juge Rajari Tanya Yamuna Jaya Sachinanda Jaya Gaura Hari Sachinanda Jaya Gaura Hari Jaya Sachinanda Jaya Gaura Hari Sachinanda Jaya Gaura Hari Oh Jaya Sachinanda Jaya Gaura Hari Sachinanda Jaya Gaura Hari Jaya Sachinanda Jaya Gaura Hari Sachinanda Jaya Gaura Hari Hari Page number 87. O माधव हे बहुत मिनती करी तो तुलसी तिला देहा समर्पिनो तुलसी तिला देहा समर्पिनो दया जानी न छड़ो भी हो माधव हे बहुत मिनती करी तो बहुत मिनती करी तो गणाई ते दोष गुणलेश ना पाओगी गणाईते दोष गुणलेश ना पाओगे जब तू कर भी विचार जब तो कर भी विचार तो जगन्नाथ जगते का तो जगन्नाथ
करितो हे माधव हे बहुत विनती करितो किए मानुष पशु पाखी जनामिए किए मनुष्य पशु पाखी जे जनामिए अथवा कीट पतंगे अथवा कीट पतंगे कर्म विपाके गतागति पुनः पुनः कर्म विपाके गतवते पुनः पुनः मतिराहु तुया कर सांगे माधव हे बहुत मिनाती करितो या भानाय विद्यापति अतिशय कातर तराईते इह भव सिंधु तराईते इह भव सिंधु तुया पद पल्लव तिलक देह दिन बांधो माधव हे बहुत मीनाती करितो या हो जय माधव हे जय माधव हे माधव हे जय माधव हे हाँ पेज नंबर बता दो 71 पेज नंबर 71 राधा कृष्ण प्राणा मोरा युगल किशोरा जीवाने मराने गति आरनाई मोरा राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर
જીવને મરણે ગતિ આર નાહી મોર રાધા કૃષ્ણ પ્રાણ મોરા યુગલ કિશોરા જીવને મરણે ગતિ આર નાહી મોરા રાધા કૃષ્ણ પ્રાણ મોર યુગલ કિશોર જીવને મરણે ગતિ આર નાહી મોર કાલિંદીરા ફૂલે ખીલી કાદંબેરા વાલા રતન વેદીરા ઉપર વસાવા દુજાના કાલિંદી કે ફૂલે ખીલી કદંબે રવાના રતન વેદી ઉપર બસાવો દુરાના શ્યામ ગૌરી અંગે દિવચુયા ચંદનેરા ગાંધા ચામરા ધોલાવ પગે હેરિવ મુખ ચાંદ્રા શ્યામ ગોરી અંગે દિવચુઆ ચંદને રગાંધ ચામર ડોલાવો કબે હેરીબો મુખ ચાંદ્ર ગતિયા માલા તિરમાલા દીવનો હાર ગાલે આધરે તુલિયા દીવો કર્પૂર તમોલે ગાંધિયા માલા તીરમાલા દીવો દોહાર ગાલે આધરે તુલિયા દીવો કર્પૂર તાંબૂલે લલિતા વિશાખાય દે જતો સાચી વેદા આજ્ઞાય કરીવો સેવા ચરણારવિંદા લલિતા વિશાખાદી જત સખી વેદ આજ્ઞાય કરીવો સેવા ચરણારવિંદ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ દાસરાનો દાસ સેવાભિલાષ કરે નરોત્તમ દાસ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ દાસરાનું દાસ સેવાભિલાષ કરે નરોત્તમ દાસ રાધા કૃષ્ણ પ્રાણ મોરા યુગલ કિશોરા જીવને મરણે ગતિ હાર નાહી મોરા રાધા કૃષ્ણ પ્રાણ મોર યુગલ કિશોર જીવન મારણે ગતિ આર નાહી મોર જય રાધે
राधे जय कृष्ण ठाकुर नरोत्तम ठाकुर नरोत्तम नरोत्तम ठाकुर नरोत्तम ठाकुर नरोत्तम नरोत्तम ठाकुर नरोत्तम Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga, Nitai 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 Gauranga, Nitai 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 Gauranga, Jaya Satchidananda Jaya Gaurahari, Jaya Satchidananda Jaya Gaurahari, O Vishnu Priya Kanana Diya Bihari, O Vishnu Priya Kanana Diya Bihari, O Nitai 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 Gauranga,
निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरिओम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम सबका बड़ा सौभाग्य है, कल हमने हमारे गुरुजी नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी की
आविर्भाव तिथि को मनाया। आविर्भाव अर्थात जन्म तिथि। आज भी उनके विषय में हम श्रवण करेंगे, और विशेषकर जो कल है, आने वाला कल शिला प्रभुपाद जी की क्या है, आविर्भाव तिथि, जन्म तिथि। और प्रभुपाद जी की जो जन्म तिथि है वो एक गौड़िया मठ नहीं, जितने भी विश्व भर में गौड़िया मठ हैं, इस्कॉन के मंदिर हैं, वो सब इनको पालन करते हैं, इनकी तिथि को। क्यों? क्योंकि गौड़िया मठ को देने वाले, गौड़िया मठ की रचना करने वाले कौन हैं? शिला प्रभुपाद। हरे कृष्ण। थोड़ा सा नहीं इसको इधर कर दो, आवाज सुनाई नहीं दे रही मुझे, थोड़ा सा कम। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है आप लोगों को? तो हम लोग श्रवण कर रहे थे कल श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के विषय में, और ब्रज प्रभु से हमने 2-4 लीलाओं को सुना। आगे हम श्रवण करते हैं। उनकी बहुत महिमा है, और बचपन से ही उनमें लक्षण दिखने लग गए थे महापुरुषों के। जब वे मठ में आए, मठ में कैसे आए उसके विषय में बतलाते हैं कि उनकी जो बुआ जी थी वो शिला प्रभुपाद जी की शिष्या थी, उनसे दीक्षित थी। तो एक समय जब वे मायापुर जा रही थी तो वो इनको अपने साथ ले गई, और जब वे मायापुर गए तो उनका छोटे से बालक है, प्रभुपाद जी की कथा को सुनकर, नवदीप धाम का दर्शन करके, क्योंकि उस समय नवदीप धाम की परिक्रमा हो रही थी, तो प्रभुपाद जी के कथाओं को सुनकर इनका मन बड़ा आकर्षित हुआ, और इन्होंने उस समय ठान लिया कि मैं हमेशा प्रभुपाद जी के साथ ही रहूंगा। केवल इनके जीवन में ऐसा नहीं देखा जाता, प्रभुपाद जी के ऐसे बहुत से शिष्य हैं जिनके विषय में यही देखा जाता है। जब जब कोई मायापुर आता, प्रभुपाद जी की पहली बार कथा सुनता, तो उनका ही हो जाता, फिर वो घर नहीं जाता था, वो घर नहीं छोड़ता, वो उसको घर संसार सब ऐसे ही लगता, और वो प्रभुपाद जी के चरणों में रह के जीवन भर सबने सेवा करी। और ये किसका आशीर्वाद है? चैतन्य महाप्रभु का। कल हमने सुना कि प्रभुपाद जी को स्वप्न में आदेश दिया, साक्षात दर्शन के माध्यम से महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि आपको जन और धन सब कुछ प्रदान करूंगा। तो यही महाप्रभु के द्वारा प्रेरित, महाप्रभु ने ही प्रेरणा देकर इन लोगों को प्रभुपाद जी के पास भेजा, और प्रभुपाद जी की कथा सुनकर सभी भक्त लोग उनके निकट रहते, और उनमें से हुए एक श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज। प्रभुपाद जी के निकट रहने लग गए, प्रभुपाद जी की सारी सेवाओं को करते, जो जो प्रभुपाद कहते। उस समय मठ मंदिर में इतना वैभव नहीं था, वैभव मतलब बहुत सारी खाने की वस्तु, बहुत आरामदायक रहने का स्थान, ऐसा नहीं था। लाइट तो थी ही नहीं, पंखा लाइट ये तो दूर की बात है। कोई गद्दा नहीं था सोने के लिए, जमीन पे सोते थे। ठाकुर जी का बस एक कक्ष होता था, और सारे एक ही जगह हॉल में सो जाते थे। तो बतलाया एक समय ऐसी स्थिति हो गई कि ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए भी वस्तु नहीं थी, केवल थोड़े से चावल थे और कोई जंगली साग के पत्तों से सब्जी बनाई हुई सब्जी थी, उसको ही भोग लगा दिया। और जो 5-6 ब्रह्मचारी उस समय रहा करते थे वो उसको ग्रहण करते। और कैसे ग्रहण करते? पत्तल भी नहीं है, अभी तो पत्तलों की भी वैरायटी है कि ये वाला। उस समय पत्तल भी नहीं है, क्या करते? जमीन पे ही खड्डा करके उसको प्रसाद को पा लेते, और वो थोड़ा सा वही उस आपस में थोड़ा डिवाइड कर लेते। तो एक दिन प्रभुपाद जी ने देख लिया। प्रभुपाद जी बोले इनसे, जब ये मठ में रहने लगे तो इनका नाम रखा गया विनोद बिहारी ब्रह्मचारी। क्या नाम रखा गया? श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी।
इन्होंने जितने भी मंदिरों में अपने ठाकुर जी स्थापित करे उनका भी नाम क्या है? श्री राधा विनोद बिहारी। इसलिए हम जय ध्वनि में बोलते हैं, जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्वी का गिरिधारी श्री राधा विनोद बिहारी श्री राधा माधव जी की जय। गांधर्वी का गिरिधारी किसके ठाकुर जी हैं? प्रभुपाद जी के, चैतन्य मठ में मायापुर। और राधा विनोद बिहारी जी किसके ठाकुर जी हैं? श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के। नवदीप जाओ, इधर मथुरा में जाओ, अपना वृंदावन में रूप सनातन गौड़िया मठ में जाओ, यहाँ पे इन्होंने विग्रहों की स्थापना करी और ठाकुर जी का नाम क्या रखा? श्री राधा विनोद बिहारी। और उनकी महिमा लिखते हुए एक अष्टक भी इन्होंने लिखा, हमारे गौड़िया गीति कुछ में है, श्री राधा विनोद बिहारी अष्टकम, उनकी महिमा लिखी। तो विनोद बिहारी ब्रह्मचारी से पूछा कि क्या मठ में खाने को नहीं है वस्तु? प्रभुपाद जी प्रचार करके आए, कह रहे प्रभुपाद नहीं, खाने की वस्तुएं तो बहुत हैं, लेकिन हम लोग वैराग्य की शिक्षा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मतलब कह रहे हम लोग वैराग्य धारण कर रहे हैं कि अल्प भोजन करना चाहिए, जितना अल्प भोजन करते हैं उतनी फिर कम नींद आती है और ज्यादा भजन में मन लगता है। लेकिन प्रभुपाद जी अंदर से जान गए कि ये मेरे से झूठ बोल रही हैं और इस समय मठ में खाने की वस्तु भी नहीं है। तो गुरु जी यहां एक विचार देते हैं हमारे कि गुरु जी से हर बात नहीं करी जाती, गुरु जी से कोई भी प्रॉब्लम शेयर नहीं करनी चाहिए, उनके हृदय को दुख हो ऐसी कोई बात नहीं बतलानी चाहिए। तो इस बात में प्रतिष्ठित थे विनोद बिहारी ब्रह्मचारी, उन्होंने उस बात को छुपा लिया। उनके गुरुजी जानते हैं, सब गुरुजी सर्वत्र जानते हैं, लेकिन गुरुजी से कोई भी ऐसी बात एक भक्त को नहीं करनी चाहिए जो उनके हृदय को दुख पहुंचाए। जितना कम हो सके ऐसी कोई बात करनी चाहिए। लेकिन हम बद्ध जीवों की स्थिति क्या होती है, हम तो पता नहीं क्या ही क्या बात करते हैं। हमें इतना ही नहीं पता गुरुजी से क्या मर्यादा रखनी चाहिए, गुरुजी से किस प्रकार से बात की जाती है। लेकिन इन कथाओं को सुनने के माध्यम से समझ आता है कैसे गुरुजी के साथ संबंध रखा जाता है, कैसे उनसे बात करी जाती है, कैसे उनकी बातों को माना जाता है। तो विनोद बिहारी ब्रह्मचारी जी इस बात को सिखला रहे हैं। फिर और दिन बढ़ने लगे धीरे धीरे। तो एक समय श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी जी, उस समय ना चैतन्य मठ में कटहल के पेड़ थे, अभी भी है, जाओ दर्शन करते हैं ना, हम जाते हैं। कटहल के पेड़, कटहल समझते हैं ना, कटहल, उस पेड़ के नीचे बैठते थे। और प्रभुपाद जी ने इनको एक सेवा दे रखी थी, मैनेजर, मठ का मैनेजर बना रखा था। सफेद कपड़े धारण करते थे और सभी लोग इनको विनोद दा, वहां पर बंगाल में भाई को, बड़े भाई को बोलते हैं विनोद दा शब्द से बोलते हैं ना, हाँ दादा, हाँ शॉर्ट फॉर्म में दा। तो विनोद दा कहकर पुकारते थे। तो प्रभुपाद जी के, हरि बोल, मेरे को वो रहा है, डिस्ट्रैक्शन होता है। प्रभुपाद जी के एक और भक्त हुए, पूरे विश्व में उनका नाम है। देखो प्रभुपाद जी के बहुत सारे भक्त हैं और हमारे माधव प्रिय प्रभु जी हर तिथि का पालन करते हैं वहां श्री राधा माधव गौड़िया मठ में, हर गुरु वर्ग की। तो अभी ये कुछ नाम शायद आप लोगों के लिए नए होंगे, लेकिन सुनने मात्र से धीरे धीरे सुनते सुनते परिचित हो जाएंगे। तो उनका नाम हुआ श्री श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज। वो प्रभुपाद जी के बड़े धुरंधर भक्त, उनसे विद्वान पंडित कोई भी नहीं था उस समय। तो वो जब पहली बार मायापुर आए, तो उस समय जब उनको पता चला ये कोई मंदिर है, ऐसी मंदिर का दर्शन करने के लिए जब आए, तो उन्होंने एक दर्शन देखा कि एक सफेद कपड़े में पतला सा ब्रह्मचारी चेयर पर बैठा हुआ है, कुछ सोच रहा है आंखें बंद करके, और उसकी दोनों टांगे टेबल के ऊपर है। और उससे बड़ी उम्र के सन्यासी, लाल वस्त्र वाले ब्रह्मचारी क्या कर रहे हैं, उनके पास आकर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तो वो आश्चर्यचकित हो गए
कि ये तो सफेद कपड़ों में है, छोटे से बालक से हैं, और बड़े बड़े सन्यासी ब्रह्मचारी जो लाल कपड़ों वाले हैं वो भी इनको प्रणाम कर रहे हैं, तो ये कौन है? उन्होंने वहां पर किसी से पूछा तो उन्होंने बताया ये विनोद दा हैं, विनोद बिहारी ब्रह्मचारी प्रभुपाद जी के बड़े प्रिय शिष्य हैं और सबसे श्रेष्ठ हैं। तो तब श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी इतने आश्चर्यचकित हुए और इनको शरणागत हुए। तो इनके गुरु भाई भी इनको बहुत बड़ा कर मानते थे, क्योंकि इनकी सेवाओं की जो लेवल था, सेवा की वृत्ति थी, वो बहुत ज्यादा थी प्रभुपाद जी के लिए। एक समय प्रभुपाद जी के गुरु जी का नाम है श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। क्या नाम है? श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। तो श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज उस समय मायापुर में कुलिया में रहते, एक स्थान है, और मायापुर में प्रभुपाद जी रहते। तो प्रभुपाद जी ना हर किसी को अपने गुरु जी का दर्शन करने के लिए भेजते नहीं थे, क्योंकि श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का जो भजन करने का पद्धति थी वो बड़ी ही अलग प्रकार की थी। उसको हर व्यक्ति डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, देखेगा तो, क्योंकि वो जैसे गंगा की मिट्टी खा लेते थे, यमुना जी की मिट्टी खा लेते थे, और बड़े छोटे कपड़े पहन के रहते थे, या उनका कोई घर नहीं था, नाव टूटी फूटी नाव होती थी जो उल्टी पड़ी होती थी, उसी के नीचे बैठ जाते थे। तो उस समय श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ना, जो ये म्यूनिसिपल कमेटी वालों के टॉयलेट नहीं होते, पब्लिक टॉयलेट बोलते हैं जैसे, तो उस समय वहां टॉयलेट में बैठे हुए थे और कई दिनों से बैठे थे एक ही टॉयलेट में। क्यों बैठे थे? और वहीं पे हरि नाम कर रहे थे। अब हम जैसा तो देखेगा तो कहेगा गुरु जी ने तो मना किया था टॉयलेट में नाम करने के लिए, लेकिन उनका लेवल अलग है। उनके हृदय की भावना क्या है कि ये जो संसार की गंदगी है ना, वो इस मल से भी ज्यादा गंदी है। वो इस भावना से उस टॉयलेट के अंदर बैठे हैं, क्योंकि उनके पास ना बहुत सारे लोग मिलने आते थे कि ये बाबा है, कुछ चमत्कार कर देंगे हमारे जीवन में, बाबा हमारे साथ ये कर दो वो कर दो। तो इस कारण से उन लोगों से बचने के लिए, उन लोगों की गंदगी से बचने के लिए कह रहे ये जो मल है, मूत्र है, ये उससे ज्यादा अच्छा है। तो वहां पे भजन करते। अब प्रभुपाद जी ने इनको भेजा कि जाओ हमारे गुरु जी का दर्शन करके आओ और उनकी कृपा लेकर आओ। तो ये गए, पता चला यहाँ पर हैं, तो इनका दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आती है, मैं बड़ा कमजोर हूँ, उठ नहीं पा रहा हूँ, बाहर नहीं आ सकता हूँ। उनको लगा म्यूनिसिपल कमेटी वाले हैं, क्योंकि वो बार बार आते थे, बाबा जी आप आ जाओ, हमने आपके लिए अच्छे से भजन कुटीर बना दिया है, अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन वो आते नहीं थे। लेकिन बाहर से आवाज आई कि हमें शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने भेजा है। इतना सुनने मात्र से ही उन्होंने दरवाजा खोल दिया और क्या कहने लगे, कह रहे तुम उनके शिष्य हो? कह रहे तुम चिंता मत करना, तुम निर्भीक होकर भगवान के नाम का प्रचार करना, और जो तुम्हारे जीवन में जितनी भी बाधाएं आएंगी ना, उसको मैं ले लूंगा। क्या बोल रहे हैं कि आप निर्भीक होकर, मतलब कोई डरे बिना भगवान के नाम का प्रचार करना सर्वत्र, उसमें जितनी भी बाधाएं आएंगी उसको मैं अपने ऊपर ले लूंगा। एक गुरु वर्ग ऐसी भावना शिष्य के लिए रखें, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मतलब परम गुरु जी बतलाते हैं, श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज कह रहे, जब इस कथा को हमारे गुरु जी सुनाते थे ना, तो रोने लग जाते थे कि आज भी बाबा जी महाराज का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, और मैं जहां जहां कथा कीर्तन करने जाता हूं, देखो ये जो गौड़ीय वैष्णव विचार है ना, ये सब लोग सहन नहीं कर पाते इतनी आसानी से, क्योंकि हमारे यहाँ तो पूरा ठीक से समझाया जाता है किसका क्या स्तर है, कौन क्या है। लेकिन बंगाल में, असम में लोग इतनी जल्दी इसको अपना नहीं पाते थे। और शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी का एक विशेषता थी, उनको आचार्य केसरी बोला गया। वो उनका जो स्वभाव था ना, वो सिंह की तरह, सिंह मतलब शेर, एक सिंह की तरह था।
कि वो ऐसा दहाड़ते थे, बोलने में नहीं, बोलने का नहीं कह रहे, बोलने में भी उनकी बड़ी ओजस्वी आवाज थी, बड़े महाराज बताते हैं, लेकिन उनके जो विचार थे कि ये जो लोग कहते हैं भगवान का स्वरूप नहीं है, भगवान और हम सब एक ही हैं, सारे देवी देवता एक ही हैं, जो ये बातें कहते हैं, तो उनकी बातों का खंडन करते थे। केवल उनकी नहीं, और भी बहुत लोगों की, बहुत सारे इस जगत में इतने भूल विचार फैले हुए हैं कि उसकी कोई गिनती नहीं है। तो ये स्पष्ट बोलते थे, स्पष्ट बोलते थे, तो उनको तीखा लगता था सामने वालों को, तो वो पत्थर भी मारते थे। बहुत से लोग मतलब इतने अभी कल सुना ना, प्रभुपाद जी के ऊपर क्या कर रहे हैं, सोडा की बोतल से आक्रमण कर दिया, उनको मारना चाहते हैं। तो ऐसे ही इनके साथ भी होता था, बहुत बारी लोग पत्थर मारने के लिए उठ जाते या कुछ हो जाता। लेकिन क्या कह रहे, गुरुदेव कह रहे हैं कि जब हमारे गुरुजी ये कथा सुनाते थे ना कि बाबा जी महाराज जी का आशीर्वाद आज भी मेरे ऊपर है, कि उनकी कृपा से ही हम जब प्रचार करने जाते हैं कोई भी बाधा नहीं आती है, उनका आशीर्वाद फल रहा है। तो ये अपने जीवन का चरित्र बताते थे कि कैसे मेरे ऊपर मेरे परम गुरुजी, मतलब उनके तो परम गुरुजी लगे ना, शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की कैसे हमारे ऊपर कृपा है। एक समय प्रभुपाद जी ने इनको आदेश दिया कि मेरे गुरुजी की जो समाधि है ना, वो गंगा के किनारे है। देखो गंगा जी का जो स्वभाव है ना, वो पता नहीं चलता, गंगा जी कभी बढ़ जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो उन दिनों गंगा जी का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो उसके कारण जो समाधि है ना वो बह जाती, मतलब जहां पर उनको रखा गया था, तो फिर उनका जो दिव्य शरीर है वो चला जाता गंगा जी में। तो बड़े चिंतित हुए प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ने इनको कहा तुम कुछ करो और मेरे गुरु जी को यहाँ पे ले आओ। कहाँ पर? मायापुर में श्री चैतन्य मठ में समाधि, जो उनकी समाधि को ही ले आओ। इतना आसान कार्य नहीं है ये, लेकिन इन्होंने दिन रात एक कर भक्तों के साथ परम गुरु, मतलब अपने गुरु जी की बात को मानकर शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी की समाधि को ले आए चैतन्य मठ में। और फिर वहां पर स्वयं प्रभुपाद जी ने अपने हाथों से मिट्टी निकाली और वहां पर अपने गुरु जी को समाधि दी दोबारा से। अभी भी हम चैतन्य मठ जाते हैं ना, तो वहां पर दर्शन है श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की समाधि का। तो वहां पे उस समय मुसलमान लोग रहते थे। कल हमने सुना ना, पहले नाम मियापुर कर दिया था, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी आए, फिर बताया ये तो मायापुर है, महाप्रभु का स्थान है। लेकिन यवनों ने, मुगलों ने, ये मुसलमान लोगों ने हर जगह परेशान कर रखा। तो इन्होंने कोर्ट में केस कर दिया कि ये कब्र को उठाकर यहां ले आए। और उस समय जो जज था ना, वो क्रिश्चियन था, ईसाई। और उनके वहां ये तो बड़ा अजीब सा माना जाता है कि ना सुना जाता, उनके वहां पे तो अलाउड नहीं है कि एक बार किसी को कब्र में डाल दो, उसको शिफ्ट नहीं करते। ये बहुत बड़ा भूल मानी जाती है, दोष माना जाता है। तो उसने जब ये बात सुनी तो इनको दंड देगा। लेकिन श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी जी किसी से भी डरते नहीं थे, सत्य वचन को बोलने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते थे। हम लोग कितनी बार तो सोचते हैं क्या बोलें क्या नहीं बोलें, लेकिन सत्य के निर्भीक व्यक्ता इनको बोला गया, उसमें लेश मात्र भी डरते नहीं थे। और क्या बोलते जज को, कह रहे हम तो ईसाई नहीं हैं, हम तो वैष्णव हैं। और वैष्णवों में कभी कभी ये देखा जाता है कि परिस्थितिवश समाधि को एक जगह से दूसरी ओर ट्रांसफर किया जा सकता है। उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दे दिए शास्त्रों के, और वो जज तो सुन के हैरान ही हो गया। और उसको जब पता चला अच्छा ऐसे भी विचार होते हैं, तो वो तो नतमस्तक ही हो गया, आगे झुक गया और कहा ठीक है, हम आपको कोई दंड नहीं देंगे। और जब फिर प्रभुपाद जी को ये बात पता चली, प्रभुपाद जी ने बड़े प्रसन्न हुए। और फिर प्रभुपाद जी ने इनको एक सेवा दे दी हमेशा के लिए कि आप कोर्ट कचहरी के केस हमारे जितने भी होंगे आप ही लड़ोगे। और तब से लेकर अंत तक ये कोर्ट कचहरी के केस जितने भी होते थे ना गौड़िया मठों के, वो सारे यही करते थे। उदाहरण के लिए सुनो, 2-3 हमारे बड़े महाराज जी बताते हैं बड़े अच्छे से। महाराज जी बताते हैं, श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी
कह रहे जब ये अस्वस्थ थे ना अंतिम समय में, कौन? श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, तो मेरे गुरुजी अपने साथ मुझे ले गए इनके पास, और ये बेड पे लेटे हुए थे, दिखने में थे बड़े दुबले पतले से, कमजोर से व्यक्ति, लेकिन सिंह की तरह, एक शेर की तरह दहाड़ते थे। कह रहे उनकी आवाज मेरे कानों में अभी भी गूंजती है। क्या? कह रहे मेरे गुरुजी ने उनको एक बात बोली, और भी गुरु भाई थे वहां, कि अगर आप इस जगत से चले जाओगे तो कोर्ट कचहरी का केस कौन लड़ेगा, फिर आप क्यों जा रहे हो? तब उन्होंने मतलब बिल्कुल उस समय बोल भी नहीं सकते, और बड़े महाराज जी कह रहे हैं उनकी आवाज मेरे कानों में आज भी गूंजती है। कह रहे बोले, कह रहे ये जो ब्रह्मचारी रहते हैं ये कोर्ट कचहरी का केस लड़ेंगे? अगर ये नहीं लड़ सकते, इनको मठ में रहने का स्थान नहीं मिलना चाहिए। ये बात बड़े महाराज जी कहते हैं, उनकी आवाज मेरे कानों में आज भी गूंजती है कि कैसे वो सिंह की तरह उस समय दहाड़े और कहा कि कोर्ट कचहरी के केस मेरे जाने के बाद भी लड़ने हैं, मैं नहीं हूं तो इसमें क्या है? ब्रह्मचारियों को या जो भी व्यक्ति है वो लड़े, अगर वो नहीं लड़ सकते तो वो मठ में रहने के लायक नहीं है। तो महाराज जी बतलाते उनके जीवन चरित्र में एक बात कि एक समय क्या हुआ, कोर्ट कचहरी का केस हुआ, तो महाराज जी के गुरुजी महाराज जी को भेजते थे इनके पास, श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के पास, जाओ वो जो लिखने के लिए बोलेंगे उसको आपने लिखना है, और ये लिखते थे जो कोर्ट में जमा करके आना है। तो कोर्ट कचहरी का केस क्या था उसको सुनो ध्यान से। केस ये था, प्रभुपाद जी तो अब नहीं रहे थे इस धराधाम पे, और प्रभुपाद जी के बहुत सारे सन्यासी थे। प्रभुपाद जी ने 18 लोगों को सन्यास दिया था। कितने? 18 भक्तों को अपने हाथों से सन्यास दिया था। उसके बाद जितने भी सन्यासी हुए वो अपने अपने गुरु भाइयों से लिया उन्होंने। तो शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी जब विनोद बिहारी ब्रह्मचारी के रूप में रहते थे ना, तो उनके घर में एक बड़ा भाई था उनका, वो भी मठ में आ गया था, वो भी भजन करता था। तो उनको प्रभुपाद जी ने कहा था कि मैं तुम्हें सन्यास दूंगा, लेकिन वो घबराते थे। लेकिन विनोद बिहारी ब्रह्मचारी जी ने उनको बोला कि प्रभुपाद जी गुरु जी हैं हमारे, और गुरु जी के वचनों का पूरा पालन करना चाहिए। वो कुछ सोच समझ के ही बोल रहे हैं, गुरु जी ऐसी थोड़ी बोल देते हैं। गुरु जी फिर वो गुरु जी नहीं है। गुरु जी मतलब भगवान के साक्षात रिप्रेजेंटेटिव, और भगवान के वचन ऐसे ही नहीं होते, वो मेरे को समझना है, वो बात अलग है। तो उसी तरह से गुरु जी के वचन हैं, तुम्हें पालन करना चाहिए। तो इनकी बात को मानकर उनके बड़े भाई ने सन्यास ले लिया था। लेकिन अब प्रभुपाद जी तो नहीं रहे, और प्रभुपाद जी का एक मठ था कलकत्ता में जिसका नाम है बाग बाजार गोड़िया मठ। वहां पे बाजार का ही नाम क्या है? बाग बाजार। तो वहां जो गोड़िया मठ खुल गया उसका नाम क्या रख दिया? बाग बाजार गोड़िया मठ। वहां पे वो रहते थे, उनका बड़ा भाई। तो प्रभुपाद जी के जाने के बाद उन्होंने क्या किया? 3 परिवर्तन लाए। प्रभुपाद जी के विचारों में 3 परिवर्तन लाए। वो क्या है? इसको मत करो ऐसे। 3 परिवर्तन लाए। पहला, प्रभुपाद जी ने क्या सिखाया है? हमें महामंत्र का उच्चारण जोर जोर से करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कहीं भी ये लिखा नहीं है, इसलिए हमें इसको जोर जोर से, जैसे हम दीक्षा मंत्र करते हैं ना, उसका तो जोर से नहीं उच्चारण करते। कह रहे ऐसी महामंत्र है, मंत्र को कभी भी जोर से उच्चारण नहीं करना चाहिए, इसको मन मन में ही करना चाहिए। ये परिवर्तन ला दिया। दूसरा कि कलयुग में सन्यास वेश कहीं भी नहीं लिखा है, इसलिए हम सन्यास के कपड़े उतार देंगे और बाबा जी वाले कपड़े डाल लेंगे। समझ आ रहा है? पहला क्या है कि महामंत्र को जोर से नहीं बोलेंगे, मंत्र है क्योंकि। दूसरा, सन्यास का वेश नहीं पहनेंगे, कलयुग में अलाउड नहीं है, तो हम बाबा जी का वेश धारण कर लेंगे। अपने सन्यास के वस्त्र उतार दिए। तीसरा, प्रभुपाद जी ने नवदीप धाम की परिक्रमा करवानी शुरू करी थी, उससे पहले नहीं होती थी, तो ये परिक्रमा हम नहीं करेंगे। अब इनको तो आ गया गुस्सा। किनको? इनके छोटे भाई शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी। उनको सहन नहीं हुआ।
और उन्होंने बड़े महाराज जी को कहा लिखो, लिखवा दिया सब कुछ। और कोर्ट में प्रभुपाद जी के विचारों को दिया गया। और जिस दिन कोर्ट केस हुआ, जिस दिन इनको आना था कोर्ट में पेश होने के लिए, तो उस दिन क्या कर रहे हैं, सन्यास के कपड़े पहनकर जोर से कीर्तन करते करते हुए कोर्ट में एंटर किए। और उसी दिन उन्होंने 8 नए सन्यासियों को, 8 नए ब्रह्मचारियों को नया सन्यास भी दिया। तो कोर्ट में क्या कह रहे हैं, कह रहे देखो हम तो सन्यासी वस्त्र पहनते हैं और हम जोर जोर से कीर्तन भी करके आए हैं। और अभी हमने थोड़े समय पहले ही नवद्वीप में एक द्वीप है जिसका नाम है गोद्रुम। 9 द्वीप है ना, उनके नाम है अलग अलग। तो वहां पर हमने एक मठ भी खोला है, किसके नाम से, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद गौड़िया मठ। मठ का नाम ही क्या रखा है, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद गौड़िया मठ। तो हम तो अपने गुरुजी की सारी बातों को मानते हैं। तो कोर्ट ने कहा तुम लोग जीत गए। कौन, जिनके ऊपर केस डाला था। अब बड़े महाराज जी बड़े दुखी हुए, कह रहे हम तो कोर्ट केस हार गए। और इनके पास आए, किसके पास, शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के पास। कहा महाराज जी हम तो कोर्ट केस हार गए, इतनी मेहनत करी थी, दिन रात आप जो लिखवाते थे मैं लिखता था, कोर्ट कचहरी में जाता था, कितने समय से हम लगे हुए थे और हम तो कोर्ट केस हार गए। तो महाराज जोर से हंसे। महाराज जी बोले, महाराज मतलब शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी बोले, अरे तुम समझे नहीं, वो लोग जीत कर भी हार गए और हम हार कर भी जीत गए। महाराज जी मेरे को समझ नहीं आई आपकी बात। तब समझाया, कह रहे हमारी लड़ाई उनसे नहीं है, हमारी लड़ाई किस लिए थी कि उन्होंने प्रभुपाद जी के विचारों को मानना बंद कर दिया था। मेरी इसलिए लड़ाई थी कि वो प्रभुपाद जी के विचारों को मानेंगे ही। अगर प्रभुपाद जी का अनुगत्य किया है तो एक एक विचार मानना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है, इसके अंदर बड़े रहस्य हैं कि कैसे उनके हृदय की भावना है कि अपने बड़े भाई को भी बख्शा नहीं, कि मेरा भाई है, ऐसा नहीं सोचा। और प्रभुपाद जी के विचारों में तुम कमी करोगे, नहीं, मैं सहन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इससे तुम्हारा ही अकल्याण होगा, इससे तुम्हारा ही अकल्याण होगा। हृदय में क्या है, प्रेम की भावना है उनके प्रति, गुस्से की भावना नहीं है। बाहर से दिखने में लग रहा है, जैसे भागवत जी में उदाहरण आता ना भीष्म पितामह का। भगवान चक्र लेके भागे भीष्म पितामह की तरफ, जब भीष्म जी ने इतने सारे बाण छोड़ दिए अर्जुन के ऊपर। तो वहां पर भीष्म पितामह जी जब शरशैया पे लेटे हुए थे ना, तब भगवान की महिमा गा रहे हैं वो। और भगवान की महिमा गाते गाते क्या बोलते हैं, कह रहे जब आप मेरी तरफ दौड़े ना, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि आप अर्जुन की साइड से लड़ रहे हो, लेकिन हृदय से कहां से लड़ रहे थे, किसकी भावना को पूरा कर रहे थे आप, मेरी। क्या मतलब, कहना क्या चाहते हैं, भगवान ने एक क्या लिया था, हाँ, प्रण लिया था कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ये भगवान ने प्रण लिया था युद्ध में। लेकिन भीष्म जी ने भी एक प्रण लिया था कि मैं इनके हाथों से अस्त्र शस्त्र उठवा के ही रहूंगा। उसी को पूरा करने के लिए भगवान ने उस दिन चक्र उठा लिया, पहिए का रथ का पहिया, उसको उठा लिया। तो देखने में लग रहा है वो अर्जुन की ओर से लड़ रहे हैं, नहीं, लेकिन किसकी भावना को पूरा कर रहे हैं, भक्त वत्सल होने के कारण अपने भक्त की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। उनके प्रति भावना है भक्त के प्रति। उसी प्रकार से शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी की हृदय की भावना है कि ये प्रभुपाद जी के विचारों को अगर नहीं मानेंगे तो इनका अकल्याण होगा, दुर्गति होगी, और प्रभुपाद जी के विचारों को मानना ही पड़ेगा। तो कह रहे हम हार कर भी जीत गए और वो जीत कर भी हार गए। और उस दिन, वो दिन है और आज भी उनकी जो परंपरा चल रही है आगे, सब लोग सन्यास भी देते हैं, जोर से महामंत्र का उच्चारण भी करते हैं और प्रभुपाद जी के विग्रह को रखकर उनकी सेवा भी करते हैं। तो ये डरते नहीं थे किसी से। एक बारी क्या हुआ, अलग अलग कुछ मठ हो गए, तो जो मेन जो मठ था चैतन्य मठ, उसमें वहां पर कोई और रहते थे और इन्होंने नवद्वीप में अपना मठ खोल लिया, देवानंद गौड़िया मठ। जिन भक्तों ने दर्शन किया वो जानते हैं। तो नवद्वीप में श्री देवानंद गौड़िया मठ जब खोल लिया, उस गौड़िया मठ की भी बड़ी विशेषता है। क्या विशेषता है, जैसे भगवान है, भगवान का कक्ष है, तो इसके बाहर लिखवा दिया उपास्य खंड,
क्या लिखवा दिया? उपास्य खंड मतलब हमारे उपास्य देवता, मतलब हम जिनकी उपासना करते हैं। और उपास्य खंड में भी उसमें क्या लिखा? महामंत्र लिखा साथ में, कि इसमें भी सर्वश्रेष्ठ कौन है, हमारे उपास्य कौन है? ये महामंत्र। और जो कीर्तन का होल है उसके बाहर क्या लिखवा दिया? कीर्तन खंड, जहां पर भगवान का कीर्तन होता है। जहां पे इनके ग्रंथ छपते या ग्रंथ बुक स्टोर लगता, वहां पे लिखवा दिया परमार्थ खंड। जहां पे सेवकों के कमरे थे, ब्रह्मचारी या जो भी रहते, तो वहां लिखवा दिया सेवक खंड। और जहां पर आचार्य रहते बड़े बड़े, वहां पे लिखवा दिया आचार्य खंड। और जहां टॉयलेट था उसके बाहर भी इन्होंने एक चीज लिखवाई, क्या? ज्ञान खंड। अब ये वाला इंटरेस्टिंग है समझने के लिए। वहां पे टॉयलेट के बाहर क्यों लिखवा दिया? कह रहे ज्ञान खंड का मतलब क्या है? कह रहे जहां पर ज्ञान को भी मल की तरह त्याग दिया जाता है, और जैसे मल को पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता, उसी तरह से ज्ञान कौन सा? मतलब भगवान ब्रह्म एक के ज्ञान, जीव ब्रह्म एक के ज्ञान की बात हो रही है यहां पर, कि मैं और भगवान एक ही हैं। जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, वो वाला ज्ञान गटर का ज्ञान है। कह रहे उसको टॉयलेट में डाल दो, तो इसलिए वो ज्ञान खंड लिखवाते हैं। और इसी बात को फॉलो करते हुए हमारे माधव प्रिय प्रभु जी ने भी पुराना मठ था ना, जो अभी इधर 16 सेक्टर में, तो वहां पर भी प्रभु जी ने ये सब लिखवाया था। तो गौड़िया मठ की जब स्थापना करी, वहां नवदीप में क्यों करी? क्योंकि उस समय बहुत से लोग ये बोलने लग गए थे कि महाप्रभु का जो जन्म हुआ था ना, वो मायापुर में नहीं हुआ, कहां हुआ? नवदीप में। जैसे हमारे परम गुरु जी शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने पहला मठ कहां खोला था? मथुरा में। कह रहे वृंदावन में क्यों नहीं खोला? कह रहे मथुरा में इसलिए खोला था ताकि सबको मैं ये समझाऊं। वहां के लोग क्या बोलते हैं? कृष्ण का जन्म कहां हुआ? मथुरा में। लेकिन हमने गुरु जी से भागवत में कितनी बार सुन लिया कि भगवान का जन्म हुआ गोकुल में। तो मथुरा में इसलिए मठ खोला कि मैं सबको ये समझाऊंगा, नहीं, मथुरा में भगवान का जन्म नहीं हुआ, गोकुल में है। उसी प्रकार किसकी भावना ली? अपने गुरुजी की। इनके गुरुजी ने क्या किया कि उस समय नवदीप में लोग बोलते हैं महाप्रभु का जन्म हुआ है नवदीप में, लेकिन नहीं, उन सबको समझाया मायापुर में ही हुआ है। आज भी नवदीप में एक मंदिर है, आप रिक्शे वाले को कहोगे ना महाप्रभु के जन्म स्थान ले जाओ, वो आपको उठाकर ले जाएगा वहीं पे, अगर आप भक्तों के साथ नहीं जाओगे तो उस मठ को खोल दिया और मठ में रहने लगे, सेवाएं होने लगी। तो इनको एक खबर आई श्री चैतन्य मठ से कि उसके साथ वाली जो जमीन थी ना, वो प्रभुपाद जी की थी, और वो लोग अब उसको बेचना चाहते हैं किसी को, ऐसी पैसा कमाने के लिए। तो इनसे सहन नहीं हुआ। कह रहे प्रभुपाद जी की संपत्ति को ऐसे ही किसी को देना नहीं सहन। इन्होंने कोर्ट कचहरी केस कर दिया, और कोर्ट में जब केस किया तो वो लोग वहां जाके क्या बोलते हैं, हम इसको बेचना ही नहीं चाहते। किसने बोला आपको? तो उन्होंने वो कागज वगैरह सब छुपा दिए और कहा हम तो इसको बेचना ही नहीं चाहते, और फ्यूचर में भी लिख के देते हैं इसको कभी भी बेचेंगे नहीं। तब भी महाराज जी ने पूछा कि महाराज जी हम तो फिर से केस हार गए। तो तब भी उनको समझाया कि वो लोग हारे हैं, हम जीते हैं। कैसे? कह रहे हमारी लड़ाई उनसे नहीं है, प्रभुपाद जी के आचरण के प्रति जो विरोध करेगा वो मैं सहन नहीं करूंगा। वो लोग उसको अपने संपत्ति कमाने के लिए बेचना चाहते थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने वो स्थान किस लिए खरीदा था? ताकि भगवान के नाम का प्रचार हो। वहां कुछ सेंटर खोलेंगे, भक्तों को बुलाएंगे, या कुछ भी जो भी बनाएंगे भगवान से संबंधित ही होएगा। लेकिन वो लोग वहां पर किसी जैसे होटल वाले को बेच रहे होंगे, या किसको भी जिसको भी बेच रहे होंगे। तो इस प्रकार हमारा लड़ाई उनसे किसी से भी नहीं है, लेकिन बस इस बात की लड़ाई है, जो प्रभुपाद जी के विचारों को नहीं मानेगा वो मैं सहन नहीं कर सकता। तो ये डरते नहीं थे किसी से। ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारे, तो उनकी बहुत सारी महिमा है। और उनके विषय में एक बात बताई कि वज्राद अपि कठोरानी मृदुनी कुसुमाद अपि, कि उनके अंदर दो चीजें देखी जाती थी, कि उनका हृदय वज्र की तरह कठोर भी था, और साथ साथ एक जैसा फूल, कमल का फूल बड़ा कोमल सा होता है, वैसा भी था। ये कैसे संभव है?
ये भक्तों में संभव हो सकता है। अभी तो हमने जो उदाहरण सुने ये तो वज्र की तरह कठोर वाले सुन लिए, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मतलब इतनी सारी कथाएं हैं कि आनंद आता है कथाओं को सुनने से कि कैसा इनका जीवन चरित्र था, अद्भुत। और कमल की तरह कैसे कोमल था, कह रहे इनके एक भक्त हुए, इनके शिष्य हुए श्रीमद् भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी। उस समय वे ब्रह्मचारी थे और वो क्या करते थे, ग्रंथों को छापते थे प्रिंटिंग प्रेस में लेके जाके। उस समय ऐसा नहीं था कि प्रिंटिंग प्रेस में जाकर दे दिया या ईमेल कर दिया, ऐसा नहीं, स्वयं जाना पड़ता था और वहां पर हेल्प करनी पड़ती थी छपाई में। इतने पैसे नहीं थे ना, क्योंकि तो एक समय क्या हुआ, प्रिंटिंग प्रेस की मशीन में उनकी उंगली आ गई, शिला भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी की, और वो उंगली कट गई। लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ कपड़ा बांध के कार्य करने लगे कि ये ग्रंथ छापना बड़ा जरूरी है, गुरु जी की सेवा जरूरी है। ये कहना और सुनना आसान है, किसी की उंगली कट जाए उसके बाद कोई सोचता है, किसी को सुई भी लगा दो, चूटी भी भर दो, कितना उसको रिएक्शन होता है। लेकिन जब इनके गुरु जी को पता चला, वो दौड़े दौड़े आए और इनको अपनी गोद में ले लिया। और एक जैसे बच्चा फूट फूट कर रोता है ना, तो अपने शिष्य वात्सल्य के कारण फूट फूट कर रोने लगे और उनको तुरंत भगवान हॉस्पिटल में ले गए कि उनको ठीक कराएंगे। तो देख, मतलब इनके हृदय कैसा कोमल था, इस कथा से समझ आता है। दूसरा उदाहरण बताया, इनके एक शिष्य थे अनंग मोहन ब्रह्मचारी, वो इनकी बहुत सेवा करते थे। लेकिन अंतिम समय में उनको क्या हो गया था, टीबी। उस समय टीबी का इलाज नहीं था और इनके गुरुजी मतलब शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने अपने शिष्य के लिए दिन रात एक कर दिया और उनकी रक्षा करने के लिए अलग अलग हॉस्पिटलों में उनको लेके गए। और फिर परम गुरुजी बताते हैं कि लास्ट में मैंने ही अपने गुरुजी को बोला कि इन ब्रह्मचारी जी की सेवा का दायित्व आप मेरे ऊपर सौंप दें। तो इस प्रकार शिष्य वात्सल्य के कारण, इतना शिष्य वात्सल्य था कि इनका हृदय कैसा था, कमल की तरह कोमल। तो उनकी बहुत सारी महिमा है। और हमारे गौड़ीय संप्रदाय के बहुत बड़े रक्षक हैं वो। अगर वे नहीं होते, गुरुजी बताते हैं आज मायापुर में जो हम देखते हैं इतने सारे मठ हैं, वो नहीं हो सकते थे, क्योंकि उस समय मुसलमानों का राज था। कल सुनाया ना ब्रज प्रभु ने कि एक ही रात में सारी कब्रें हटा दी, कोई आसान है। और वहां पे सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगा दिए, बगीचे लगा दिए, जैसे बहुत पहले से हो। तो पुलिस भी जब आई वो भी आश्चर्यचकित होगी कि यहाँ पे तो कब्र हो ही नहीं सकती, देखने से किसी को भी पता ही नहीं चलता। लेकिन इनकी सेवा का वैशिष्ट्य कि अपने गुरुजी की एक बात को सुनते और उसको पूरा कर देते। गुरुजी ने एक समय बस ऐसे ही बोला कि मैं तो भगवान राधा कृष्ण की सेवा के बारे में बतलाने आया था, लेकिन मेरा पूरा जीवन किसमें चला गया, ये बताने में कि ये भक्ति नहीं है, ये भी भक्ति नहीं है, ये भी भक्ति नहीं है। तो कब मैं ये बताऊं कि भक्ति जो है वो क्या है। तो जब इन्होंने ये बात सुनी तो अपने सिर पर उस सेवा को धारण कर लिया। इन्होंने ग्रंथ भी लिखा है, उस ग्रंथ का नाम है मायावाद की जीवनी। क्या नाम है? मायावाद की जीवनी। उस ग्रंथ में मायावादियों के जितने भी विचार है ना, उसका खंडन किया। खंडन मतलब बताया कि ये सारे विचार कैसे गलत हैं। और कभी भी किसी से डरते नहीं थे, सत्य वचन को बोलते थे जो वैष्णव संप्रदाय के हैं। तो श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की कल उनकी आविर्भाव तिथि थी। थोड़ा सा आज हमने दोबारा श्रवण किया। आज प्रभुपाद जी की अधिवास तिथि है। अधिवास तिथि का मतलब होता है तिथि से एक दिन पहले जो तिथि होती है उसको अधिवास कहते हैं, और भक्त लोग इसको भी पालन करते हैं। अभी हम आप बोलेंगे कृष्णदास प्रभु जी से प्रभुपाद जी की महिमा सुनेंगे। और आप सबसे अनुरोध है कल सब आना। कल प्रभुपाद जी की तिथि का बड़े धूमधाम से हम पालन करेंगे। सब परिवार आप आए, सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था भी करी जाएगी और हमारी माता लोग ही कर रहे हैं। तो आप सब आना और प्रभुपाद जी की महिमा सुनेंगे। बड़े सुंदर कीर्तन करेंगे, प्रभुपाद जी का जय ध्वनि देकर उनका नाम संकीर्तन करेंगे। लेकिन आज हम अपने कृष्णदास प्रभु जी से थोड़ा प्रभुपाद जी के विषय में सुनते हैं। हरे कृष्ण।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हम लोग यहाँ पर बहुत ही विशेष उद्देश्य से 3 दिन के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर हम लोग श्रीला प्रभुपाद ओम नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रीला प्रभुपाद जी के शुभ आविर्भाव तिथि महोत्सव के लिए एकत्रित हुए हैं। श्रीला प्रभुपाद जी का जन्म 6 फरवरी 1874 ईस्वी में 1874 में ओडिशा में जगन्नाथपुरी मंदिर के अत्यंत समीप जिला में हुआ। श्रीला प्रभुपाद जी के पिता का नाम श्री केदारनाथ दत्त और श्रीमती माता जी का नाम श्री भगवती देवी। श्री केदारनाथ दत्त हमारी गुरु परंपरा के आचार्यवर श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, उनका पूर्वाश्रम का नाम श्री केदारनाथ दत्त। श्रीला प्रभुपाद जी के जन्म समय में एक विशेष लक्षण देखने को मिला। जब उनका जन्म हुआ तब उनके दिव्य शरीर पर गर्भनाल इस प्रकार लिपटी हुई थी जैसे एक ब्राह्मण के शरीर पर जनेऊ धारण किया होता। और उस समय ब्राह्मणों पंडितों ने उनके दर्शन कर उनके माता पिता को कहा कि ये बालक आगे चल के बहुत भक्ति भावना से हरि नाम का प्रचार पूरे विश्व में करेंगे। ऐसा ब्राह्मणों ने उनके श्रीमुख के दर्शन करके उनके माता पिता को कहा। श्रीला प्रभुपाद बचपन से ही श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी के साथ, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी हमारे आचार्य वर्ग बहुत महान आचार्य वर्ग, और जब जहाँ भागवत कथा कीर्तन के लिए जाते तो श्रीला प्रभुपाद जी को छोटे से बालक, उनका बाल्यावस्था में उनका नाम श्री विमला प्रसाद, तो उनको साथ लेके जाते। उनकी भावना को देखकर जब वो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी के साथ जाते कथा में भागवत, तो श्रीमद् भागवत को ग्रंथों को अपने सिर पर उठाकर उस स्थान पर जाते और भागवत समाप्त होने के बाद, कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वापस अपने सिर पर रखकर घर को लौट आते श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी के साथ। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनको बाल्यावस्था में हरिनाम मंत्र और नरसिंह मंत्र प्राप्त किया। बाल्यावस्था में ही वो हरिनाम बहुत रुचि से करते थे। उसके बाद श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनको आदेश किया कि आप श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी के पास जाकर दीक्षा मंत्र प्राप्त करें। श्रीला प्रभुपाद जब श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी के पास गए तो उन्होंने बताया कि श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने मुझे आदेश दिया है कि मैं आपके चरण आश्रय प्राप्त करूं। तब श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी ने उनको कहा, यद्यपि श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने आपको आदेश दिया है, लेकिन मैं श्री नित्यानंद प्रभु की आज्ञा लेकर ही आपको दीक्षा मंत्र प्राप्त करूंगा, प्रदान करूंगा। तो कुछ समय बाद श्रीला प्रभुपाद फिर श्री गुरु गौर किशोर दास बाबा जी के पास जाते हैं तो पूछते हैं कि आज आप मुझे दीक्षा मंत्र प्राप्त करेंगे, प्रदान करेंगे। तो श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी उनको कहते हैं, ओहो मैं तो श्री नित्यानंद प्रभु जी से पूछना भूल ही गया, आप कुछ समय बाद आइएगा। ऐसे करते करते फिर एक दिन कुछ समय बाद श्रीला प्रभुपाद उनके पास जाते हैं और श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी से कहते हैं कि आज आप मुझे दीक्षा मंत्र प्राप्त प्रदान करेंगे।
तो श्री गौर किशोरदास बाबा जी कहते हैं, हाँ आज मैं आपको दीक्षा मंत्र प्राप्त करूंगा, मुझे नित्यानंद प्रभु जी ने आदेश दे दिया है। तब उनको श्री गौर किशोरदास बाबा जी ने दीक्षा मंत्र प्रदान किया। तब उनका नाम हुआ दीक्षा के बाद, तब उनका नाम हुआ वर्षभानवी दैत दास। दीक्षा मंत्र प्राप्त करने के बाद तब उन्होंने अपने जीवन में व्रत लिया 100 कोटि हरि नाम जप करने का। 100 कोटि हरि नाम अर्थात 100 करोड़ हरि नाम का व्रत लिया अपने जीवन में। तो जब वो हरि नाम 100 कोटि का व्रत पालन कर रहे थे तो उस समय वो हर समय निरंतर हरि नाम में ही मगन रहते थे, बहुत प्रीति पूर्वक हरि नाम जप करते थे और सिर्फ केवल दिन में एक बार भोजन करते थे। भोजन कैसे करते थे? ऐसे नहीं कि एक समय ही खाना है तो भर के खा लिए, प्लेट भर के खा लिए। हमारे साथ हम एकादशी करते हैं तो हम 2 टाइम लेते हैं, या निर्जला भी अगर हम करते हैं तो हम उससे पहले भी, एक दिन पहले भी हम सब ऐसा करते हैं कि हम एक रात पहले ही भर के खा लेते हैं, कल एकादशी है, कल हम नहीं खा पाएंगे, तो ऐसा करते हैं। लेकिन श्रीला प्रभुपाद ऐसा नहीं थे। वो पत्तल में भी नहीं लेते थे, जमीन में एक गड्ढा खोद के उसमें दाल चावल जो भी हो उसको ग्रहण करते थे, हाथों से नहीं लेते थे। वो अपने मुख से एक बार मुख में ले सकते हैं वैसे वो प्रसाद लेते थे। इसको कहते हैं गोग्रास व्रत। तो इस तरह से वो हरि नाम करते थे, जैसे गाय खाती है उस प्रकार से। तो एक ही बार में लेंगे, दोबारा वो प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से अत्यंत प्रीतिपूर्वक वो हरि नाम का जप करते थे। इसी में जब वो 100 कोटि हरि नाम व्रत पालन कर रहे थे तो 1914 में श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी और 1915 में श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी इस जगत से अप्रकट हो गए। तब उनके मन में आया कि तब उनके मन में बहुत विरह उत्पन्न हुआ कि मेरा हरि नाम अब 100 करोड़ हरि नाम का जो व्रत है वो संपूर्ण होने ही वाला है कुछ दिनों में। उसके बाद मैंने तो ये प्रण लिया था कि मैं जगत में प्रचार प्रसार हरि नाम का सभी जगह प्रचार प्रसार करूंगा। लेकिन अब श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी, श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी इस जगत में नहीं है, तो अब मैं नवीन भक्तों को किसका आश्रय प्रदान करूंगा। तो मैं ये जो मैंने प्रण लिया था हरि नाम प्रचार प्रसार का पूरे विश्व में, वो मैं नहीं करूंगा, ऐसा विचार करने लगे विरह में। तभी एक दिन प्रातःकाल उनको श्रीला पंचतत्व श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत, श्री गदाधर, श्री वासाचार्य और हमारे षट गोस्वामी जी, श्री रूप सनातन रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी, श्री जीव गोस्वामी जी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी और श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर और श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी उनके सामने उनको दर्शन दिया और उनको आदेश दिया कि आपने जो ये विचार बनाया है ये आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, आप निर्भय होकर हरि नाम का प्रचार करिए। तब श्रीला प्रभुपाद जी ने उनके आगे कहा, नतमस्तक होकर कहा हाथ जोड़कर कि मैं हरि नाम प्रचार कैसे करूंगा, ना मेरे पास धन बल है ना मेरे पास जन बल है। तो उनको आदेश दिया कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आप हरि नाम प्रचार प्रसार कार्य जल्द से जल्द आरंभ कीजिए। तब श्रीला प्रभुपाद ने हरि नाम का प्रचार देश विदेशों में करना आरंभ किया। उन्होंने 1918 में संन्यास ग्रहण किया, लगभग 44 वर्ष की आयु में। तब उनका नाम हुआ श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रीला प्रभुपाद। उनके श्री चैतन्य महाप्रभु के अभियान में इतनी पवित्रता, इतनी निष्ठा
देखकर सभी लोग उनको श्रीला प्रभुपाद के नाम से पुकारने लगे। उन्होंने अपने जीवन काल में 64 मठों की स्थापना करी देश विदेश में। आज आप जो भी गौड़िया मठ, चैतन्य गौड़िया मठ इंडिया में 64 मठों की स्थापना करी। चैतन्य गौड़िया मठ, इस्कॉन टेम्पल, एक मंदिर भी बनाना कितना कठिन होता है। 64 गौड़िया मठों की उस समय स्थापना करी। तो नित्यानंद भवन, जितने भी गौड़िया मंदिर हैं उनके मूल प्रतिष्ठा श्रीला प्रभुपाद ही हैं। उन्होंने अपने जीवन में 100 करोड़ हरि नाम का व्रत लिया था, लेकिन अगर हम उनके आश्रित कहलाते हैं, उनको श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, उनकी तिथि पालन करते हैं, उनको पुष्पांजलि देते हैं, लेकिन हम लोग तो 16 माला भी नहीं कर पाते हैं प्रीतिपूर्वक। अगर 16 माला हो जाए तो उसके बाद तो हम माला को देखते भी नहीं है, अभी माला हमारे पास आसपास है या नहीं है, कल देखेंगे स्नान के बाद। तो इस प्रकार से हमें तिथि पालन करने का मेन उद्देश्य क्या है? श्रीला बड़े महाराज ओम नित्य लीला प्रेष विष्णुपाद अष्टोत्तर शास्त्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, तिथि पालन करने का मेन उद्देश्य ये है, गुरु वर्गों की, आचार्य वर्गों की जो भावना, जो प्रीति भगवान की सेवा, अपने गुरु वैष्णव की सेवा में जिस प्रकार से वो सेवा करते हैं, जिस प्रकार से वो भजन करते हैं, उसको जानना, उनके जीवनी को जानना, और केवल जानना ही नहीं, अपने जीवन में उसको पालन करना। अब एकदम से हम 3 लाख हरि नाम जप नहीं कर सकते भी, आज हमने सुना और कल से 3 लाख करें। लेकिन आज हम लोग यहाँ आए हैं, 1 घंटा 2 घंटा कथा सुनी है वासुदेव प्रभु जी से, और कथा कीर्तन सुना है, लेकिन हम कुछ लेके जाए। हम 3 लाख तो नहीं, लेकिन कम से कम जो लोग 2 माला करते हैं, 6 12 से 16 ऐसे करने का अपने मन में रखे। यही मेन उद्देश्य है तिथि पालन करने का। श्रीला प्रभुपाद अपने उपदेश में बहुत सारे अद्भुत उपदेश प्रदान किए। उन्होंने अपने उपदेश में कहते हैं, मनुष्य जीवन का मेन लक्ष्य क्या है? मनुष्य जीवन का मेन लक्ष्य है हरि नाम भजन करना, हरि नाम करना। जो लोग ऐसा नहीं करते वो लोग क्या कहलाते हैं? आत्मघाती। वो अपनी आत्मा की हत्या खुद ही कर रहे हैं। शरीर मरने के बाद अगर भजन नहीं किया शरीर रहते रहते, तो आत्मा को फिर से कभी कुत्ता, बिल्ली, सुअर, कीड़ा बनना पड़ेगा और आत्मा भटकती रहेगी। इसीलिए मनुष्य जीवन में हमने हरि भजन करना बहुत ही आवश्यक है। और एक बार श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि जो लोग पंच विषय उपासक होते हैं वो हरि नाम प्रेम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। पंच विषय उपासक अर्थात जो लोग पंच देवों की पूजा करते हैं, सूर्य, दुर्गा देवी, विष्णुदेव, शिव, गणेश, और अपने विषय को पूरा करने के लिए, जैसे हम देखते हैं नवरात्रों में या गणेश चतुर्थी दिवस में, अपने विषय पूरा करने के लिए हम उनको घर में विराजते करते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए घर में विराजते हैं, और 6 दिन 7 दिन 15 दिन के बाद उनको नदी में फेंक देते हैं। जो लोग ऐसे करते हैं, इस भावना से पूजा करते हैं, वो लोग कभी भी हरि नाम की महिमा को, हरि नाम का शुद्ध प्रेम को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। श्री श्रीला प्रभुपाद हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। अब समय हो गया, बाकी कल हम श्रवण करेंगे।
वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। इन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर कथाओं को सुनाया ना। देखो प्रभुपाद जी का जीवन चित्र बड़ा मतलब अद्भुत है। ये सारे ही गुरु वर्गों का जीवन चरित्र इतना अद्भुत है कि हमें बल प्रदान करता है भक्ति में आगे बढ़ने का। इन्होंने एक बात बताई, उसको बस थोड़ा सा बताता हूँ। प्रभु जी ने बात बतलाई कि प्रभुपाद जी ने जब उनको महाप्रभु ने दर्शन दिए कि आपको मैंने ये नाम जप करने के लिए अकेले में नहीं भेजा, आप प्रचार करिए भगवान के नाम का, इसलिए भेजा है मैंने। तो वहां पर प्रभुपाद जी ने दीनता की भावना दिखाई और क्या कहा, वहां महाप्रभु को ये नहीं कहा हाँ हाँ महाप्रभु मैं कर दूंगा, महाप्रभु मैं ऐसे कर दूंगा आपने जो बोला है। नहीं, प्रभुपाद जी कर सकते थे, ऐसा बोल भी सकते थे, क्योंकि प्रभुपाद जी डायरेक्ट भक्त हैं भगवान के, इतना बल है उनमें। ब्रह्मांड तारिते ना हाँ, ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने, एक एक भक्त में इतनी शक्ति होती है, पूरे ब्रह्मांड को तार देते हैं वो। तो प्रभुपाद जी क्या कर नहीं सकते? और महाप्रभु को बोल भी सकते थे कि हाँ महाप्रभु आपने जो कहा ठीक है मैं करता हूं। लेकिन क्या बोले, पहले दीनता दिखा रहे हैं अपनी कि मुझ में बल नहीं है, मैं कैसे करूंगा, आपकी कृपा नहीं होगी तो कैसे संभव है, आप ही मुझ पर कृपा कीजिए। मेरे पास ना तो लोग हैं ना कोई धन संपत्ति है जिसके माध्यम से प्रचार के लिए पैसा तो चाहिए होगा, कुछ लोग भी चाहिए होंगे, कैसे करूं? तो वहां दीनता दिखाइए। ऐसे ही एक शिष्य का कर्तव्य होता है। ये नहीं कि गुरु जी ने कुछ बोला हाँ जी गुरु जी हो जाएगा, लेकिन हो तो जाएगा, हृदय में क्या भावना रख रहा है? हृदय में ये वाली भावना रख रहा है कि मैं ही श्रेष्ठ हूं इसलिए गुरु जी ने मुझे बोला है और मैं गुरु जी की सारी बातों को पूरा कर दूंगा। नहीं, वहां पर हृदय में अगर हमने हाँ भी कर दिया, गुरु जी को बोला कि हाँ हम आपने जो कहा है वो सेवा करेंगे, लेकिन हृदय में भावना क्या रहेगी कि इसका बल भी आप ही देते हैं, मैं नहीं कर सकता इसको, ये जो सेवा करने की जो शक्ति दे रहे हैं वो आप ही देते हैं। ये भावना एक शिष्य के हृदय में रहती है, वो प्रभुपाद जी इस लीला के माध्यम से दर्शाते हैं। शिल प्रभुपाद की। तो कल हम ऐसी ही सुंदर सुंदर कथाओं को सुनेंगे। ब्रज प्रभु और अभी प्रभु भी कल करेंगे कथा, है ना। सभी भक्त लोग ऐसे सुनेंगे सुंदर सुंदर प्रभुपाद जी के विचारों को। ये है गौड़िया मठ के खोलने का वैशिष्ट्य। यहाँ पर ऐसे सुंदर सुंदर विचार जो गुरु वर्गों के हैं, उनकी क्या महिमा है। अब धीरे धीरे हम भक्ति में ऐसे ही आगे बढ़ना है इन कथाओं को सुनकर। तो ये इस प्रकार से है। और मैं गुरुजी का आप सबको मैसेज दे देता हूँ, क्योंकि गुरुजी का फोन आया था जब मैं बीच में उठकर गया था। तो गुरुजी ने कहा कैसे हैं सारे भक्त लोग अम्बाला में, मैं सबको बड़ा मिस कर रहा हूँ। और अगले थर्सडे, आज थर्सडे है, आज क्या है, हाँ तभी ऐसे बोले कि अगले थर्सडे मिलते हैं सबसे, मैं आ जाऊंगा। तो बड़ा उत्साह है गुरुजी में भी। ये क्या मरी मरी सी तालियां हैं, जोर से गुरुजी के लिए, मेरे लिए थोड़ी। तो गुरुजी बड़े प्रसन्न हैं, मतलब कि उनको अच्छा लगा। और बार बार मेरे को ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ का वीडियो भेजो, कैसा हुआ है रगड़ाई, कैसा ठाकुर जी का ऑल्टर है। हर समय उनको चिंता सताती है। मेरी तो बात होती है गुरुजी से तो मेरे को पता है। तो गुरुजी को हर समय यहाँ की चिंता रहती है कि भक्त लोग कैसे कर रहे हैं, तुम 3 दिन क्या बोलोगे कथा में, सब पूछते हैं। वो ऐसे नहीं, उनके ही अनुगत्य में होता है। कौन कौन गया है, को किसकी क्या सेवा है, ब्रज प्रभु क्या कर रहे हैं, अनंत प्रभु क्या करते हैं, ये करण प्रभु क्या कर रहे हैं, और हमारे प्रधान जी कैसे हैं, सब भक्त लोग कैसे हैं, ऐसे सारा पूछते हैं। और साथ साथ कहा सबको मेरा मैसेज देना कि 15 तारीख को मैं कुरुक्षेत्र आ रहा हूँ, सब आ जाओ, ठीक है। कोई ऐसे नहीं कि कुरुक्षेत्र नहीं आएगा फिर मैं उससे बात नहीं करूंगा आकर। गुरुजी बोले, मैं कहा नहीं मैं बोल दूंगा। तो सब भक्तों को गुरुजी निमंत्रण दे रहे हैं, पास में ही है ना। गुरुजी के साथ धाम में जाना चाहिए, है ना। उस दिन संडे भी है तो आधा ही दिन होगा बस लगेगा। तो आप सबसे प्रार्थना कर रहे हैं, गुरुजी मेरे को बोले कि सबसे प्रार्थना करना सब भक्त लोग आए। हमने प्रसाद की व्यवस्था भी सबके लिए की है और आप सब लोग वहां पर पहुंचे। जो जो जाने के इच्छुक हों प्रधान जी को नाम लिखवा सकते हैं, नहीं तो मुझे बता दीजिए जैसा भी है। और टैक्सी करके या जैसे भी गाड़ियों से भक्त लोग अपना सब जा सकते हैं। और अगले ही दिन गुरुजी कह रहे हैं हम शिवरात्रि के उत्सव के लिए 15 को तो आ ही जाएंगे गुरुजी शाम को ही।
और शिवरात्रि का उत्सव यहाँ सब लोग भक्त लोग धूमधाम से हम करेंगे। सभी भक्तों को गुरु जी कह रहे हैं सब आए और इस कथा का लाभ उठाएं। बोलो गुरुदेव की। ठीक है, अब हम कार्यक्रम को यहीं रखते हैं। आरती होगी, आरती करके फिर शेष करते हैं। और कल इसी प्रकार से कार्यक्रम होगा, आप आ जाना। परसों हम सब चले जाएंगे। हरि बोल। कल कथा बोलनी है।